हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैजिक ऑफ स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी ने हमारा पिछला लेक्चर मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin. On the basis of origin, basically the resources are divided into two categories: biotic resources and abiotic resources. Biotic resources, these are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, etc. Means basically living resources are called biotic resources. They are obtained from biosphere, for example human beings, birds, insects, etc. Then abiotic resources, all those things which are composed of non-living thing are called abiotic resources. For example, mountains, land, air, water, minerals, metal, etc. Means living resources are called biotic resources and non-living resources are called abiotic resources. For example, rock and metals. Okay. Next, on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources are further classified into two categories: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. ऐसे resources जो physical, chemical और mechanical process से easily replenish हो जाए उन्हें कहते हैं renewable resources. For example, wind energy, solar energy, water. वाटर renewable resource क्यों है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. ओके, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा. और हमने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि renewable resources are further divided into two categories, that are continuous or flow and biological resources. Okay, the next category is non-renewable resources. Non-renewable resources, these occur over a very large geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. बहुत कॉमन है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. These resources take millions of years in their formation. मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. Some of these resources like metal are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. ये भी बताया था मैंने. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल. रिसाइकलेबल का एग्जांपल है मेटल और नॉन रिसाइकलेबल का एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स. मैंने आपको ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में लास्ट वीडियो में बताया था. नेक्स्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ये तो नाम से ही समझ आ रहे हैं बट फिर भी इनको पढ़ लेते हैं. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. ऐसे रिसोर्सेज जो हम विच आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, मतलब कि जो हमारे अपने होते हैं, किसी और का उन पर हक नहीं होता. जैसे कि हमारा घर है, फैक्ट्री है, हमारा पर्सनल गार्डन है, हमारा पर्सनल स्विमिंग पूल है, वो सब हमारा है. मतलब कि हमारा अकेले का है, हम विच आर ओन प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल. ओके, मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. जैसे कि गवर्नमेंट कुछ फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को कुछ लैंड से देती है ताकि वो उन पर अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करे और कुछ पैसों पे, कुछ मतलब कि सस्ते रेट पे दे देती हैं. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property. Plantation, pasture land. Pasture land होता है जिसमें गाय भैंस को चराया जाता है. Ponds, water and wealth, etc. are some of the example of resource ownership by an individual. Then there is the activity: make a list of resources owned by your household. Then next, अब इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ विलेजेस में कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड होती है और कुछ बिल्कुल ही लैंडलेस होते हैं. और अर्बन एरियाज़ में पीपल के पास अपने हाउसेस होते हैं, अपने प्लॉट्स होते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन इन विलेजेस, प्लांटेशंस, पैस्चर लैंड, पोन्ड्स, वाटर इन वेल एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स. देन आर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नाम से ही समझ आ रहा है. देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. विलेज
village commons, grazing grounds, burial grounds, village ponds, etc., public parks, picnic spots, playgrounds in urban area are de facto accessible to all the people living there. कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी के होते हैं, मतलब कि विच आर ओन्ड बाय कम्युनिटी, जैसे कि पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, ये सब होते हैं, मतलब कि जिन्हें कम्युनिटी यूज़ करती है। कोई ऐसे मतलब कि जो भी उस कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो उससे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक विलेज का ब्यूनरल ग्राउंड है, ब्यूनरल ग्राउंड जहाँ पे ना मुर्दों को दफनाया जाता है, उसे बोलते हैं ब्यूनरल ग्राउंड, विलेज पोंड, विलेज वेल, एट्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज। अगर देखा जाए तो हमारा हर एक रिसोर्स नेशन का ही है। ओके, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। आपने देखा होगा कभी कभी ना गवर्नमेंट ना कुछ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना एक्वायर कर लेती है, मतलब कि हड़पती नहीं है, उसे कुछ रीजनेबल अमाउंट दे देती है उसके लिए, ताकि वो वहाँ पे कुछ पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, जैसे कि रोड्स बना सके, डैम्स बना सके, लाइक वाइज। You may have seen roads, canals, railways being constructed on field owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. Urban development authorities होती है, जैसे कि हमारी हरियाणा की है हुड्डा, तो उनके पास पावर होती है कि वो किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, उसको रीज़नेबल रेट देते हैं उसकी लैंड का, मतलब कि जो वो होता है उसका प्राइस, प्रॉपर प्राइस उसे देते हैं और वो ले लेते हैं उसकी लैंड, और वहाँ पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम करते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 nautical miles. Nautical miles is the unit of measuring land under sea. Land under sea, I mean land under water. जो कि अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो वो होती है 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू नेशन। हमारी कंट्री के सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, हमारे फॉरेस्ट, हमारी वाइल्ड लाइफ और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर की लैंड और ओशियनिक एरिया अप टू 12 nautical miles and all belong to our nation. Okay, these are termed as national resources. Then international resources. इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब कि ना कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए, वो रेगुलेट करते हैं उनको, जैसे कि देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। अब ना इंटरनेशनल रिसोर्स का सिर्फ एक एग्जांपल गिवन है हमारी बुक में, वो है द ओशियानिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कम्युनिटी कैन यूटिलाइज दिस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओशियानिक एरिया बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स में, मतलब कि कोई भी कंट्री से प्राइवेटली यूज़ नहीं कर सकती, उन्हें परमिशन चाहिए इसे यूज़ करने के लिए फ्रॉम सम, देयर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट दीज रिसोर्सेज। तो एक कंट्री को उन्हें यूटिलाइज करने के लिए परमिशन चाहिए उनसे। नाउ आवर फोर्थ बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स ये रिसोर्स कितना डेवलप्ड है या नहीं है, उसके भी 4 बेसिस हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज पोटेंशियल resources which are found in a region but have not been utilized. For example, in the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक जगह पाए जाते हैं बट प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होते, जैसे कि हमारे राजस्थान और गुजरात में ना बहुत ज़्यादा स्कोप है सोलर और विंड एनर्जी का, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। देखो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, हमारे पास विंड टर्बाइंस है ताकि हम उन्हें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कंज्यूम कर सकें, बट लेकिन गुजरात और राजस्थान की इतनी अच्छी इकॉनमी नहीं है कि वो इनको प्रॉपरली डेवलप कर सकें। मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें और उन रिसोर्सेज में भी पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकें, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूटिलाइज नहीं होते हैं पूरी तरह और एक पर्टिकुलर रीजन में। उन रिसोर्सेज को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो
पोटेंशियल है कि यूज़ कर सकते हैं, हमारी नीड्स वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उन्हें यूज़ कर सकें। ये होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और एग्जांपल यही है सोलर एंड विंड एनर्जी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ओके, देन द सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है हम उसे उस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरह डेवलप्ड है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फीजिबिलिटी। मतलब कि उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम उन्हें अच्छी तरह यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। देन स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess these are included among stock। बेसिकली क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसे कि हम उन्हें रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल इधर गिवन है, फॉर एग्जांपल वाटर H2O इज़ द कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने पढ़ा है साइंस में, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि हम वाटर को एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बट हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज़ कर सकें। मतलब कि वाटर की दोनों गैसेस को अलग करके उन्हें एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें यूज़ कर सकें। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक में कंफ्यूज होते हैं। देखो स्टॉक में क्या है, हम उस रिसोर्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर दे, और हमारे पास कैपिटल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बस टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होता है, वो रिसोर्सेज के अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सके, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है पर हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, बस यही डिफरेंस होता है इनके अंदर। और फिर होते हैं रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। मतलब कि रिजर्व्स क्या होते हैं कि ना हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उनको यूज़ कर सकें, हमारे पास कैपिटल भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। These can be used for meeting future requirements। हम उन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को सफ़र ना करना पड़े। देखो रिजर्व्स में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और उसके अंदर कैपिटल भी है, और उस रिसोर्स के अंदर पोटेंशियल भी है कि वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर दे बट हम उसे फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। Okay, river water can be used for generating hydroelectrical power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Then there is a given example of river water। हम रिवर की वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि वो हम और बना सकते हैं बट अभी हम नहीं बना रहे हैं ताकि हम उसको एक्चुअली फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। और thus the water in dams, forests etc. is a reserve which can be used in future। अब रिजर्व के 2-3 एग्जांपल और दिए हुए हैं जैसे कि वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट, रिवर वाटर यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एट्सेट्रा। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू राइट इन योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके गाइज, थैंक यू, एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ स्पार्कलिंग डे। बाय बाय।